Hi guys, and welcome back to another video of mine. So everyone was requesting a lot to me to make a video on SRCC girls hostel, hence I decided to make this video. So in this video I have covered all the aspects of the girls hostel, starting from the selection to the fees and everything. Stay tuned. So having seen the video about how the hostel looks, some of you might be having doubts regarding the rooms. So you can refer to my previous video. I'll provide the description link in the description, wherein I have given my room tour. So rooms are basically like that. We have double seater rooms, and there are 12 rooms for third years. Total in all we have 106 seats in the girls hostel now. Currently I am in the girls hostel garden and shooting a video from here because it's the most peaceful place right now. Okay, so this spot looks completely fine to me. Beginning with hostel, the number of seats, I'm repeating again, the number of seats is 106. We have seats for first years, second years, third years, as well as MCOM and GBO people who are associated with SRCC. So the number of seats are going to be like this only. This is the new girls hostel. Earlier we had only 52 seats, but now we have 106 seats. I find it very awkward to shoot here, but got no other option, so yeah. That's about the seats. Now coming to किस तरीके से you're gonna get into hostel. So getting into hostel is basically first years के लिए whatever your CUET marks are going to be, उस हिसाब से merit list निकलेगी. And जिस तरीके से आपका कॉलेज में एडमिशन होता है along with your reservation system and everything, EWS, SC, ST, OBC कोटा and everything, तो वो process यहाँ पे भी follow होगा. For second years it would be your first year का जो CGPA है उसके basis पे. For third years it would be your second year का CGPA जो है उसके basis पे आपको seats यहाँ पे मिलेंगी, right? और सीट्स लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई सीट अपनी छोड़ देता है तभी आपको फिर से सीट मिलती है, वरना नहीं मिलती. टॉकिंग अबाउट मी, आई वाज अ रेस्टोरेंट इन फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में आई डिडंट गेट अ सीट, एंड थर्ड ईयर में मुझे मिल गई थी बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे थे. सो दैट्स अनदर थिंग. ओके, टॉकिंग अबाउट रूममेट्स का थिंग, तो रूममेट ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू कांट चूज़ योर ओन रूममेट. यू गेट टू डिसाइड विद होम यू गोना स्टे, एंड अगर रैंडम एलोकेशन हो जाता है तो लेटर ऑन इफ यू फेस प्रॉब्लम्स यू कैन टॉक टू द वार्डन एंड इट गेट्स चेंज्ड. नाउ इन द हॉस्टल वी हैव laundry services which are provided. Semi-automatic washing machines are there. ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर ये प्रोवाइडेड होगा. एंड गारंटिंग यू कि इससे बेटर फूड आपको कहीं नहीं मिलेगा जो भी हॉस्टल में बनता है, बिकॉज जो भी मेन्यू है वी पीपल ओनली मेक द मेन्यू एंड उसके हिसाब से होता है. फिर हॉस्टल का एक यूनियन होगा जिसमें यू हैव योर प्रेसिडेंट जो आपकी थर्ड ईयर का होगा.
फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जैसे करेंटली इस वक्त मैं हूँ, तो वो भी 3rd ईयर का होगा. देन यू हैव अ मेंटेनेंस सेक्रेटरी, मैथ सेक्रेटरी, ये भी 3rd ईयर्स के होंगे. एंड देन यू हैव अ कल्चरल सेक्रेटरी जो 2nd ईयर से होता है. सो दे आर मतलब टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस जो भी हॉस्टल में होते हैं, जो भी इवेंट्स हम कराते हैं, एंड जो भी अदर प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो मैथ्स से रिलेटेड या मेंटेनेंस. सो मैथ्स इज़ बेसिकली आपका डाइनिंग एरिया जहाँ पे सब बच्चे बैठ कर खाते पीते हैं. इट्स क्वाइट गुड. एयर कंडीशनर्स आर देयर, 4 एयर कंडीशनर्स. ऑल्सो द only problem with hostel is that you don't get an AC in your rooms, but obviously गर्मी है, so you can get your coolers. You can buy coolers and use them. In winters you can buy blowers, heaters, anything, and you can preferably use them. So उस पर कोई वो नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो. Refrigerator is provided on 1 floor right now, but maybe 2nd floor पर भी आ जाए बाद में. So that's there. Ground floor is for the 3rd years. बीच वाला फ्लोर दैट इज़ द फर्स्ट फ्लोर इज़ फॉर द 2nd ईयर. तो सबसे ऊपर हम 1st ईयर्स को रखते हैं और फिर धीरे धीरे यू गेट टू शिफ्ट डाउन. उसके अलावा यू हैव लॉन, काफ़ी सुंदर, जिसमें फूल वूल भी खिलते हैं. सो दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट इट. एंड डबल सीटेड रूम्स होते हैं, सो कोई क्राउड भी नहीं है. रूम्स आर वेरी स्पेशियस, दे आर क्वाइट बिग, वेरी ब्यूटीफुल. जैसे ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव पिंक कर्टन्स, ऊपर वी हैव ब्राउन कर्टन्स, थोड़ा सा और ऊपर जाके वी हैव ब्लू कर्टन्स. सो ओवरऑल इट्स काफ़ी अच्छा. फैसिलिटीज़ एंड ऑल आर काफ़ी गुड. एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे होता है. कमिंग टू द फी स्ट्रक्चर, सो फी स्ट्रक्चर इज़ 58,000 फॉर एन एंटायर ईयर, दैट इज़ फॉर 2 semesters, विच मेक्स यू कैन से इफ़ यू अज्यूम 60,000 दैन इट मेक्स 5,000 पर मंथ पड़ेगा आपका. इट्स क्वाइट चीप एज़ कम्पेयर टू PGs एंड ऑल. प्लस द बेस्ट बेनिफिट इज़ आपको सिर्फ वॉक करके अपने क्लासेस तक जाना है. इट्स जस्ट अ 5-minute थिंग. इवन इफ़ यू हैव एन 8:30 क्लास एंड यू वेक अप एट 8 or 8:15 or 8:20 for that matter, you can still reach your class on time. That's a plus point about hostel. Then you have all the sports equipments with you, you can play, राइट. वो होता रहता है. इवेंट्स होते रहेंगे, फेयरवेल होगा, फ्रेशर्स होगा, दिवाली सेलिब्रेशन, नवरात्रि सेलिब्रेशन. वी डू अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो हेयर एट द हॉस्टल. कमिंग टू फी स्ट्रक्चर अगेन, बातों में इधर चली गई थी. सो या फी स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया 60,000 पूरे साल का अप्रॉक्स, में भी थोड़ा सा बढ़ भी सकता है. फिर जो आप जितना भी खाते पीते हो उसका अलग से बिल आता है हर 3 months में, अराउंड 10,000 to 12,000. सो टोटल भी आप मिला लोगे तब भी PGs एंड ऑल के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है. विद फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. तो पर हेड आपका 7,000-8,000 पर मंथ के अप्रॉक्स ही पड़ता है. So that was more or less about the hostel, उसका fee structure, admission process and everything. Warden and all are very cool and everything rest is good. So you can have a look at the video, and still if you got some queries or something related to hostel or anything related to SRCC or study related strategies, don't follow to comment. Do like, share and subscribe my video for more content like this.